Okay, जी. So I'm sure the screen is visible to everyone. And okay, the first character we were yesterday, we were discussing like two sectors were following Geoffrey Chaucer. The name of the first chapter was there were the Scottish Chaucerian, and the second one was the English Chaucerian. English Chaucerian. So these English people, we have a very famous name, that is John Lydgate. John Lydgate was the person who was following the tradition of Geoffrey Chaucer from England. Give me a moment. So John Lydgate was the person, but why it is important to mention John Lydgate? Let us understand the years of John Lydgate. John Lydgate was born in 1370, and he remained in the limelight till 1451. So after mentioning these years, let us talk about his important manuscript, what he wrote basically. He wrote The Falls of Princes. That was very, very, very important book. Important in the sense, in The Falls of Princes, he mentioned what are the reasons, how princes fall down, why their kingship is without tranquility, without peace. Remember, we did mention another name, Richard II. Richard II was written by William Shakespeare. Please mute yourself. Roxana, please mute yourself. William Shakespeare in 1595 wrote Richard II, and in this play he mentioned the same thing जो जॉन लडगिट ने अपनी पोएम द फॉल्स ऑफ प्रिंसेस में बताई कि ये किंग्स और क्वींस जो हैं ये हुकूमत तो करते हैं बट इनकी हुकूमत बड़ी थोड़ी सी देर के लिए होती है. if you want me to quote the exact lines of the William Shakespeare, तो वो कहता है let us talk about kings and princes, कि वो जंगें लड़ते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है, जिंदगी का खतरा उन्हें होता है. आपने जैसे कि मैकबेथ के अंदर पढ़ा होगा, डंकन जो है जो किंग था वो कत्ल कर दिया जाता है, उसको क्या मिलता है और उसके बच्चे जो हैं वो किस तरह से भागते हैं वहां से. सारे के सारा प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है. खैर, John Lydgate was a very important person who was following Geoffrey Chaucer. The second important person, the second fellow who was following. But before talking about the second person, it's pertinent to mention another work of John Lydgate, the second important poem, that is the Temple of Glass. The Temple of Glass is very important. And then London Lyckpenny. So these are the important manuscripts, these are the important works of John Lydgate, the first person who was following Geoffrey Chaucer from England. But then the second person who even calls Geoffrey Chaucer his father, Thomas Hawkley. Thomas Hawkley. Thomas Hawkley was born in 1368, whereas he died in 1450. Thomas Hawkley wrote a very important poem, like John Lydgate wrote The Falls of Princes, he wrote The Regent of Princes. And this poem is very famous. He is recognized by this poem.
he mentioned, Father Chaucer fame would have me taught, but I was dull and learned little or not. You know, the spellings are a bit different. He mentioned Father Chaucer fame would have me taught, but I was dull and learned little or not. So from these words, we come to know he was taking Chaucer as his father. See the spelling of the father. So he was saying Chaucer was like a father. He wished to educate me, and he means the spiritual father. So Hoccleve is important for the regent of princes, briefly speaking. The third important English follower was Alexander Berkeley. The years of Alexander Berkeley are from 1475 till 1552. Sorry, yes, 1552. So the work of his important book, poem, obviously the poem is Ship of Fools. The reason of his fame is this book. The book means the collection of poetry, the collection of poems. So what is the specification of Ship of Fools? Fools, a lot many, a number of, not limited to. So the picture of humanity, Alexander Berkeley, like Chaucer, he's giving you the picture of whole humanity, like these people are fools. So he covered humanity in larger scale. So you must have noticed from these three names, one thing is dying, that is medievalism. Another thing is emerging, that is modernism. I was specifically mentioning these ages. When one was born, when someone died. So John Lydgate, Thomas Hoccleve, Alexander Berkeley, all these followers, they are giving a new trend to England, London, that is the modernism. But how we can forget the last follower, that is John Skelton, a great name, a very important name, who outshined all these three followers. Born in 1460, died in 1529, a critic, an open critic. 1460, approximately 100 years after his guru, the Chaucer. But he was not really following Chaucer, though he is considered as a follower of Chaucer, though his name is there. But I feel, as per my comments are concerned about John Skelton, he was not following Chaucer. How? Let us mention some details about this great name. John Skelton, you know, please mute yourself. Ruxana, Zaristan, please, you are requested to mute yourself. So these two people, he was neither following Petrarch nor following Chaucer. His years of birth, why I'm saying he's not the follower of Chaucer. Like if he's born in 1460, means he got his conscience maximum till 1480 at 85. So it means, and moreover, his manuscripts, his illuminations, his books, they're not depicting the trend of the Chaucer.
उस दौर में दो नाम थे जिनको फॉलो किया जाता था, दो गुरु थे जिनको माना जाता था. फर्स्ट वाज पेट्रियार्क. पेट्रियार्क कहाँ से था? इटली से था. बोर्न इन 1304 and remained in the limelight till 1374. Petrarch, Italian. Petrarch was the pioneer of Renaissance. When we say Renaissance was started in Italy, Petrarch is the pioneer of Renaissance. Why he was pioneer? Petrarch was the first person who gave us sonnets. Sonnets, a poem having 14 lines in it. First 8 lines known as octave, and second line sestet. Okay, the combination of Petrarchan sonnet is 8 plus 6 is equal to 14. So that is known as Petrarchan sonnet. Although William Shakespeare gave its own arrangements, he gave quatrain plus quatrain plus quatrain plus couplet, means 4 lines, 4 lines, 4 lines plus 2, and then once again we have 14 lines in it. So arrangement is a bit different. But let's talk about John Skelton first, and then we are going to talk about all these things in details. बेन जॉनसन ने, सभी लोगों ने पेट्रियार्क को बड़ी रिस्पेक्ट दी, बड़ी ऑनर दी, बट ही वाज नॉट फॉलोइंग चॉसर और पेट्रियार्क. स्पीक पैरेट, जॉन स्केल्टन की पोएम स्पीक पैरेट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. 1460 से 1529 के दरमियान हमें पता चलता है द टेन्योर इज हेनरी 7 एंड हेनरी 8. हेनरी 8 ये वही है जिसने चर्च से शादी की इजाजत मांगी थी, बट ही could not get the consent, जिसने अपनी 3 बीवियां कत्ल कर दी थी, because he was yearning for a male child. So moving on, he was a very, so speak parrot is a poem जिसमें हमें ये पता चलता है कि क्रिटिसाइज करते कैसे हैं. So for the very first time, इंतहाई सख्त अल्फाज में जिसने क्रिटिसाइज किया वो हमारे पास जॉन स्केल्टन था. क्या ऐसा इसमें? स्पीक पैरेट में जॉन स्केल्टन ने एक क्लर्जीमैन को हिट किया जिसका नाम थॉमस वुल्जे था. थॉमस वुल्जे वाज अ वेरी पावरफुल मिनिस्टर. in the reign of Henry VIII. Henry VIII, who was the father of Queen Elizabeth. Powerful minister in the sense he was having 3 portfolios: religion, then there was politics, and then the culture. A very powerful minister. So, but स्पीक पैरेट में जॉन स्केल्टन उस पर तनकीद करता है, जब आपके पास इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हो तो मींस यू आर मोर पावरफुल देन किंग. इवन रिलीजन था, रिलीजन वो है जिसने किंग को शादी तक की इजाजत ना दी. पॉलिटिक्स, कल्चर, ऑब्वियसली देयर आर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज एज वेल. सो स्केल्टन wrote his satire on वुल्जे, थॉमस वुल्जे, जो कि इन तीनों का मिनिस्टर था. Check out his dearness, how brave he was. So he wrote a poem, and the title of this poem is why come you not to the court? He was posing direct questions to Woolsey, Thomas Woolsey. So Woolsey was indirectly ruling the country. So John Skelton asked him all these questions. Obviously, with the passage of time, we say Thomas Woolsey, Kings and Queens में ऐसा ही होता है कि Thomas Woolsey जो हैं वो हेनरी 8 की नज़रों से वक्त गुजरने के साथ साथ कोई बात अच्छी नहीं लगी और हेनरी 8 ने इसको पहले इम्प्रिजन कर दिया और फिर इसको जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया.
But John Skelton is important and different because John Skelton also gave a meter. एक मीटर भी इसने दिया. कौन सा मीटर था? स्केल्टोनिक मीटर. सो हमने अभी 3 मीटर्स पढ़ लिए, नाम सिर्फ याद कर लिए. पहला हमने पेट्रियार्कन सोनेट का किया, शेक्सपियरियन सोनेट का किया, और तीसरा हमने इम्पोर्टेंट जो टर्म थी स्केल्टोनिक मीटर को किया. स्केल्टोनिक मीटर क्या होता है? मीन्स जिसके अंदर शॉर्ट वर्सेस होती हैं, ऐसी शॉर्ट वर्सेस जो कि इरेगुलर हो, ऐसी इरेगुलरिटी कि जब आप बोल रहे होते हैं तो ऐसा फील होता है आप ब्रेथलेस हैं, परहैप्स यू आर रनिंग, आप ब्रेथलेस होकर जो बातें कर रहे हैं. सो ही गिव दिस स्केल्टोनिक मीटर, ऐसा मीटर जिसके अंदर स्ट्रेस एंड फॉल जो है वो एनीवेयर आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है. एक ऐसा मीटर है जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसने दिया. सो इसके अंदर a very clever repetition of short lines is going on. So we can say Renaissance was started with the contribution of Skeltonic meter. Renaissance got started जब जो है वो Skeltonic meter दिया गया. Skeltonic meter के साथ ऐसी कौन सी चीजें एसोसिएटेड हैं वो आगे चल के भी हम देखेंगे. लेकिन अभी तक हमने ये देखा, चौसर को डिस्कस किया, चौसर की एज को कल के सेशन में, चौसेरियन को डिस्कस किया, स्कॉटिश चौसेरियन को डिस्कस किया, इंग्लिश चौसेरियन को डिस्कस किया, और उसके बाद हमने किसको डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया जॉन स्केल्टन को. बट इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कुछ समझ लेते हैं, कुछ टेक्निकल चीज समझ लेते हैं. हम बार बार बातें करते हैं मीटर की, हम बार बार बातें करते हैं इन चीजों की, थोड़ी सी इस पे बात कर लेते हैं. अभी आपके सामने एक पोएम मैंने पोस्ट की है. दैट पोएम इज डैफोडिल्स. ओके, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. किनकी रीडिंग अच्छी है वो जरा इसको पढ़ें. अब्दुल्ला खान प्लीज गो ऑन. Okay, sir. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars Thank you so that much. Thank you shine so much. and twinkle. Thank you so much. So, just अगर आपने कोई भी नज्म देखी है उसमें पहले अगर आपने ये देखना है कि ये नज्म क्या सोनेट है, क्या कपलेट है, क्या रिंटेन है. पहला स्टेप है हम उसकी लाइनें काउंट कर लेंगे. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. सो इसमें 12 जो है वो टोटल लाइंस है. इट मींस इट्स नॉट ए सोनेट. अगर 4 जो है वो लाइनें होंगी इसको हम कहेंगे क्यूरटेन, अगर 2 होंगी उसको कहेंगे कपलेट. पहली चीज हमने समझी. अब दूसरी चीज जो समझने वाली है, ये मैंने एंड पे जो है एक दायरा लगाया क्लाउड पे. अभी मैं सिर्फ हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है. हमने मीटर्स की बात की ना, आगे चल के हम समझेंगे. सो मैंने क्या किया, मैं इन सब का जो है वो दायरा जो है वो लगाता जा रहा हूँ. अब मैंने डैफोडिल्स पे लगाया, अब मैंने ट्रीज पे लगाया, अब मैंने ब्रीज पे लगाया. अब हम जो है वो कुछ समझेंगे जो हमें हेल्प आउट करेगा. अब हमारे पास पहला जो है क्लाउड, जो क्लाउड है हम ये समझना चाह रहे हैं कि क्लाउड से मिलता जुलता जो है वो कौन सा है हमारे पास लाइन. क्लाउड, क्राउड, हिल्स, डैफोडिल्स. यानी कि जो पहली लाइन थी इसे हमने मान लीजिए कि मैंने इसको ए का नाम दे दिया. ये जो पहला एरो है इसे मैंने ए का नाम दे दिया. आई डोंट नो ये मुझे लिखने देगा कि नहीं लिखने देगा. ओके, इसने दे दिया ए. ओके, सो हमारे पास अब जो सेकंड है, सेकंड में हम जो है हिल्स, थर्ड पे हिल्स जो है वो चूंकि ये क्लाउड से मिलता जुलता नहीं है इसलिए हम इसको कौन सा नाम दे देंगे. अब हम इसे बी का नाम दे देंगे, थोड़ा डिफरेंट है, बी का दे दिया. अब हमारे पास क्राउड वंस अगेन उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से क्लाउड था. मींस
पहले से ए से मिलता है, क्लाउड, क्राउड एक जैसी राइमिंग स्कीम है, हम इसे नाम दे देंगे, ए का नाम दे देंगे। वंस अगेन हमारे पास जो है वो आपने देखा डैफोडिल्स, दैट इज जस्ट लाइक बी, तो हम इसे बी का नाम दे देंगे जैसे कि मैंने अभी दिया। अब हमारे पास ये जो हमारे पास एंड वाली दो लाइनें हैं, दो कपलेट हैं, इनमें तो ये किसी से नहीं मिलता, ट्रीज क्लाउड से भी नहीं मिलता, हिल से भी नहीं मिलता, लिहाजा हमने इसको एक सेपरेट सा नाम दे दिया एंड दैट नेम इज सी। और हमने आखिर पे देखा कि ब्रीज और ट्रीज मिलते हैं, लिहाजा हमने एंड वाले को भी नाम क्या दे दिया, सी का नाम दे दिया। सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि इसकी राइमिंग स्कीम हमारे पास जो आई है ए बी सी सी, ओके। इसी तरह से शाइन वे, शाइन और लाइन मिलते हैं, वे और बे मिलते हैं, ए बी सी सी, ओके। सो इस तरह से आप जब भी कोई पोएम अपने तौर पर पढ़ेंगे तो आप उसके अंदर राइमिंग स्कीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि राइमिंग स्कीम होती क्या है। अभी तक आपके लिए राइमिंग स्कीम हमारे पास राइम से है, ऑलराइट। तो हमारे पास जो राइमिंग स्कीम है हमें उसे इस तरह से समझ सकते हैं। हमने ये देखा किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अपने सेशन की तरफ वापस आते हैं। ये आपको आइडिया ये देना था मीटर क्या होता है। अगर आपको ये समझना है कि इसके अंदर आयम्बिक पेंटामीटर है, आयम्बिक टेट्रामीटर है या कोई और मीटर है, तो उसके लिए आप यकीनन आपको पता है कि आप आइडेंटिफाई करेंगे, किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे, एक टूल के साथ। वो कौन सा टूल होगा, आप स्ट्रेस और अनस्ट्रेस को अलग करेंगे। आपके पास जो है वो पहली लाइन है आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड के अंदर है, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं आई के ऊपर स्ट्रेस मौजूद है, आई वंडर्ड, वंडर्ड। अब हम देखते हैं कि वंडर्ड लफ्ज जब मैं बोलता हूं तो वंडर्ड इसमें इसके ऊपर जो है वो स्ट्रेस है। तो ये दो स्ट्रेस हमने देखा था कि जब एक जो है वो अनस्ट्रेस जिससे वंडर्ड है और दूसरा स्ट्रेस ये हमारे पास जो है वो एक सेलेबल बनाता है। इसी तरह से हमारे पास लॉनली है, लॉन ली पे हम देखते हैं कि इसमें लॉन के ऊपर जो है वो स्ट्रेस नहीं है, जबकि ई एल वाई इसके ऊपर हमारे पास स्ट्रेस मौजूद है, ठीक है। एज के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, ए के ऊपर मौजूद है, आई वंडर्ड लॉनली एज अ क्लाउड। तो ये हमारे पास चार हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस, स्ट्रेस अनस्ट्रेस का। तो आप जानते हैं कि जिसे हम जो है वो ये चार पेयर्स जो हमारे पास बनेंगे इन्हें हम कहते हैं आयम्बिक टेट्रामीटर। डिटेल में बात करेंगे इस पे ऊपर जो है, अभी सिर्फ समझना ये जरूरी था कि किस तरह से ये हम जो है वो राइमिंग स्कीम्स को हाईलाइट करते हैं। सो यहाँ तक जो है वो हमने बात समझी। अब यहाँ से हम जो है वो ऑनवर्ड्स मूव करते हैं। सो यस हानिया बेटे आपने ठीक लिखा है, लेकिन आपने चैट बॉक्स में डायरेक्ट लिखा है, इसकी वजह से बाकी नहीं देख सकेंगे कि आपने क्या लिखा है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप पब्लिक लिख देंगे तो बाकी भी पार्टिसिपेशन उसमें कर सकेंगे। सो जी मूविंग ऑन, अब हमारे पास जो हमारा जबरदस्त और बड़ा मजे का, मुझे तो वैसे ये टॉपिक बड़ा अच्छा लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू गाइस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड टॉक अबाउट रेनेसांस। Renaissance. What is Renaissance? Renaissance means regeneration. Renaissance means revival. Renaissance means rebirth. Renaissance means rejuvenation. Renaissance means something new. Renaissance means there was not there before. So one single word having many meanings, multiple meanings. Let me reduce the size of the alphabet, of the font size. Okay, yes. So Renaissance revival, but revival of what? Revival of previous writers. Previous writers. Previous writers? Who were the previous writers? Please ignore these typing mistakes. So who were these previous writers? Then we have the name revival of Plato, revival of Aristotle, revival of Cicero.
these writers were Greco-Romans. So Renaissance means the revival of previous writers. You cannot forget the history. Literature is life. Whatever you are seeing, whatever you are doing, that is life. So you cannot detach your life from literature, whatever you are seeing, whatever you are having. To understand Renaissance once for good, we need to understand that Turkey invaded Europe in 1453. So, टर्की वैसे टर्की खिलाफत उस्मानिया का अलम बरदार रहा है, बट आई एम रियली सॉरी कि आई केम टू नो कि टर्की ने जो है वो इजराइल को एक्सेप्ट किया हुआ है. सो देयर वाज रियली स्ट्रेंज फॉर मी कि टर्की जैसी जो कंट्री है उसने इजराइल को जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है. That's strange, but their relation were formalized in March 1949. Naveed साहब हमारे पास होंगे. Naveed is also taking the classes of competition exams. Naveed, what do you think about these relationships? Like Turkey, the first Muslim majority country, and recognize the state of Israel, and even having priority to military, strategic, diplomatic relationship. Would you like to say anything? नो सर, अभी तक इतना डिटेल में नहीं पढ़ा. अभी मैं जो है ना सिर्फ उस पे काम कर रहा हूँ, मोस्टली एशियन पैसिफिक, स्पेशल पाकिस्तान अफेयर्स पे. No issues. Just take your time. But it's strange, na? The Turkey, Yes, sir. they have accepted Israel, and obviously it's really strange. So coming back to the topic, 1453 के अंदर जो है कुछ ऐसा होता है जो पहले नहीं होता. Obviously Turkey was a very powerful country at that time. So Turkey invaded Europe. They not only invaded Europe, but they conquested. उन्होंने आए और उन्होंने रेस्ट ऑफ द यूरोप पे 1453 के अंदर जो है वो कब्जा कर लिया. इस सारे के सारे के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, द फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल. 1453. If you want to see, that is going to help you a lot. अब जब ये इन्वेजन होता है, हम ये जानते हैं कि whenever जहां पे भी इन्वेजन होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन भी होती है. जब डिस्ट्रक्शन होती है तो वहां पे हम ये देखते हैं कि लोग वहां से भागते भी हैं. जैसे म्यांमार से लोग भागे और मुसलमान जो है वहां से उन्होंने आके बांग्लादेश के अंदर पनाह ली, बिकॉज बांग्लादेश जो है वो उनके साथ लगता था. सो सेम वाज हैपनिंग देयर एट दैट टाइम कि वहां से जब स्कॉलर जो हैं, टर्की ने यूरोप के ऊपर जो है वो जब अटैक किया, जब वहां पे इन्होंने इन्वेजन की, तो हमें ये पता चलता है कि वहां से स्कॉलर्स को जो कुछ मिला उन्होंने क्या किया, वहां से अपने आप को उन्होंने वहां से भागे. ठीक है, इटली से फरार हो गए बिकॉज टर्की वाज देयर. जो कुछ उनको मिला दे टुक इट एंड दे रन अवे. अब जो मैन्युस्क्रिप्ट्स उनके पास थी उसको वो लेके जर्मनी के अंदर चले गए. ओके, जर्मनी के अंदर चले गए. अब जर्मनी से ऑनवर्ड्स कहानी कुछ इस तरह से चलती है कि जर्मनी से इस लिटरेचर पे जो इन्हें मिला उन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया. अब यहाँ से ऑनवर्ड्स जो फॉल ऑफ कंस्टेंटिनोपल है, यहाँ से ऑनवर्ड्स हमें चीजों की डिटेल में समझ आती है. अब हमें रेनेसांस वाज नॉट द मूवमेंट जो एक सिंगल पर्सन ने दी थी. रेनेसांस वाज ए कलेक्टिव एफर्ट, ए कोलैबोरेटिव एफर्ट, a mixture of different literal and minor movements. सबसे पहले हमारे पास नाम आता है मार्टिन लूथर का. Martin Luther, he was born in 1483 and died in 1483 and remained alive till 1546.
So Martin Luther was the person who was a monarch. एक monarch था. He was, sorry, not monarch, monk. Like he was a monk in the church. He was, teaching in the church, Martin Luther. But his teachings were different. Martin Luther. What is the job of a father? What is the job of a father? Obviously, to preach Christianity, to invite people towards Christianity. But Martin Luther ने बड़ा strange काम किया. He was highlighting the corruption of the church. वो चर्च की करप्शन से दिल बर्दाश्त हो चुका था. And he felt कि चर्च जो है, जो हमारे पास प्रीस्ट हैं, वो तो लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. So what he did, इसने चर्च की जॉब छोड़ दी. He was no more a father there. He left the job. And after leaving the job, what he did, he joined a university as a professor. What was the name of that university that he joined? Obviously, the University of Wittenberg. कौन सा कैरेक्टर है जो विटनबर्ग में हमारे पास पढ़ा हुआ है? कोई बता सकता है हमारे पास जो है वो कौन सा विटनबर्ग यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ कैरेक्टर एक है? शायद आप हैमलेट लिखना चाह रहे होंगे सभी. ओके, सो और वहां पे ये प्रोफेसर बन गया, प्रोफेसर ऑफ डिविनिटी. प्रोफेसर ऑफ डिविनिटी बनने के बाद जो है इनका काम क्या था कि अब लोगों को डिवाइन चीजों के मुतालिक बताते. लेकिन ये क्या बता रहे हैं? ही इज टेलिंग देम कि चर्च की कोई बात नहीं मानो. व्हाटएवर चर्च इज सेइंग दैट इज रॉन्ग. जो चर्च आपको बता रहा है वो सब झूठ है. वो कैसे झूठ है? बिकॉज चर्च के अंदर होता क्या था कि कुछ इस तरह से रिलेशनशिप चल रहा था. ट्रायंगल थी, मैन था, प्रीस्ट था, और उसके बाद जो है वो गॉड था. लेकिन मार्टिन लूथर ये कहते हैं कि ये प्रीस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है? वाई मैन कैन नॉट डायरेक्टली से द थिंग्स टू द गॉड. तो इनका पहला ये मुतालबा था कि आपको चर्च को छोड़ना होगा. लेकिन याद रहे ये उस टेन्योर की बातें हम कर रहे हैं जब चर्च ने किंग को शादी की इजाजत नहीं दी थी, हेनरी 8 को, और फिर उनको अपना अलग से एंग्लिकन चर्च बनाना पड़ा था. ठीक है. सो मार्टिन लूथर जो है, इन्होंने सबसे पहली जो इनकी एफर्ट थी वो एफर्ट ये थी कि इन्होंने खुदा के कॉन्सेप्ट को गॉड के कॉन्सेप्ट में से ये प्रीस्ट को माइनस कर दिया, प्रीस्ट को निकाल दिया. मतलब ये कि अब इंसान खुद भी गॉड से बातें कर सकता है. मतलब ये कि इंसान खुद भी जो है वो अब चर्च में जा सकता है और इबादत कर सकते हैं. थोड़ा सा पीछे चले जाएं. मिडिवलिज्म में हो क्या रहा था? मिडिवलिज्म में लोगों को सिर्फ 2 तरह के प्लेस दिए जाते थे. एक उनके पास होते थे मोरालिटी और दूसरे उनके पास होते थे माइकल प्लेस. अब ये देखें ये लोगों को फीड क्या कर रहे थे, ये बता क्या रहे थे? लोगों को मोरालिटी और माइकल प्ले पे फीड कर रहे थे चर्चेज हैं. लेकिन मार्टिन लूथर वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बताया कि इट इज रॉन्ग. इसने ये तब्दीली दी. अ मैन who was very honest man, a man with conscience. So Martin Luther was a man जिसके अंदर सिर्फ कॉन्शियसनेस थी. मार्टिन लूथर वाज द पर्सन कि जिसके अंदर हमें जो है वो सारी की सारी वो चीजें नजर आती हैं जो इससे पहले नहीं थी. क्रिश्चियनिटी को हमने देखा कि जो पहले पुराने लोग होते थे जो कि उनको कहते थे कैथलिक. सो मार्टिन लूथर ने जो है कैथलिसिज्म के अगेंस्ट चला और प्रोटेस्टेंटिज्म इसको जो है वो सपोर्ट किया. प्रोटेस्टेंटिज्म एंग्लिकन चर्च का दूसरा नाम है. प्रोटेस्टेंटिज्म जैसा कि नाम से जाहिर होता है, प्रोटेस्ट, ये वो कल्चर था जो कि प्रोटेस्ट के नतीजे में आया था. हेनरी 8 को जब इजाजत नहीं मिली तो हेनरी 8 ने जो है वो क्या किया? सिंपल इज दैट के प्रोटेस्ट में अपना एक चर्च सेपरेट किया. सो दीज पीपल दे वर द प्यूरिटन्स, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन. अब हमारे पास ये आते हैं. अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स किस्म के जो चर्च थे उसकी प्रीचिंग को जो है वो क्रिटिसाइज किया गया. लेट्स मूव ऑन. अब हमारे पास एक दूसरी चीज जो आती है वो ये थी कि ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ.
मार्टिन लूथर ने लोगों को ये बताया कि अपने ऊपर एतमाद करो, बाइबल खुद पढ़ो, इससे पीछे जाके देखें, ये है रिवाइवल, ये है रीबर्थ, ये है वो रिज्यूविनेशन, ये है वो नॉलेज का अहया होना, पैदा होना, कि अब लोगों को ये कहा जाता है कि फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, स्टॉप स्प्रेडिंग इग्नोरेंस। अब जो है कैथलिक जो हैं, जो कि सबसे पुराने वाला जो एक कल्चर था, एक सेक्ट था, उसके ऊपर डायरेक्टली तनकीद होना शुरू हो गई थी। सो इंस्टीट्यूशंस जो हैं, वो इंस्टीट्यूट्स जो हैं, चर्च वाज एन इंस्टीट्यूट, बट मार्टिन लूथर ने अब इंस्टीट्यूट पे अटैक किया। सो जी सबसे पहले तो आपको बात समझ में आ गई कि हमारे पास पहली रीजन जो रेनेसांस की थी वो मार्टिन लूथर थी। सो मार्टिन लूथर वाज अ पर्सन के जिसने जो है वो थीसिस दिया था अपना। मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थीसिस जो हैं वो अपने दिए 1517 में, जिसके अंदर इसने खुल्लम खुल्ला चर्च के ऊपर बात की। इट वाज नॉट इजी, सो मार्टिन लूथर वाज ऑब्वियसली अ ग्रेट पर्सन, अ ग्रेट नेम। सेकंड नेम हमारे पास आता है, वो आता है जियोवेनी पिकोडेला, जो कि इटली से था। ठीक है, सो हमारे पास सेशन जो है वो खत्म हो रहा है, लेस देन 1 मिनट है। सो हम जो है वो इसको दोबारा ज्वाइन करते हैं और यहीं से हम जो है वो बात करते हैं। सो ये रेनेसांस के जो फैक्टर्स थे, मार्टिन लूथर हमारे पास जो है ये मार्टिन लूथर जी ये भी हमारे पास जर्मन फिलोसफर थे। ठीक है, जर्मन फिलोसफर जो है वो, तो मार्टिन लूथर का रोल आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मार्टिन लूथर के ऊपर जो है वो, अच्छा जी, सेशन जब खत्म होने वाला होता है फिर लंबा हो सकता है। चलिए खैर दूसरे नेम को भी डिस्कस कर लेते हैं, जियोवेनी पिकोडेला। दूसरा नेम हमारे पास आ गया, ही वॉज फ्रॉम इटली। जियोवेनी पिकोडेला जो है